हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आई एनेटमी स्टार्ट किया था, तो होपफुली आपको समझ आया होगा लेक्चर। वी हैव स्टडीड अबाउट वॉल्स ऑफ ऑर्बिटल कैविटी एंड एसेसरी स्ट्रक्चर्स पे हम थे। एसेसरी स्ट्रक्चर्स में आगे का टॉपिक जो है हमारा वो कंजक्टाइवा है। तो व्हाट इज कंजक्टाइवा? इट इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। एक म्यूकस मेम्ब्रेन ही है जो आई के आईबॉल को कवर करता है, बट इट इज अ ट्रांसलूसेंट, इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। आई रिपीट, इट इज अ ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर। तो ट्रांसलूसेंट इज समवट ओपेक टाइप। ओके, तो इट हैज सम पार्ट्स। द पार्ट्स ऑफ कंजक्टाइवा इज bulbar conjunctiva, you will see palpebral conjunctiva, and third is conjunctival fornix. With the help of diagram, we will understand what are these structures. So this is the diagrammatic representation in which we will see the white part you have, that is a bulbar conjunctiva. See, this is bulbar conjunctiva, is spreading in all over the corneal part. The white structure जो आप देख रहे हैं, this is the cornea, and उसके ऊपर जो है एक mucous membrane की covering रहती है, and that is your conjunctiva. And which conjunctiva? It is bulbar conjunctiva, that is spreading over the cornea part. Next, it is our palpebral conjunctiva. You will see here, this is the palpebral conjunctiva. This whole structure in the inferior eyelid, you will see the palpebral conjunctiva. Inside the eyelid, in the inferior side, you are going to see palpebral conjunctiva here. And third one is conjunctival fornix. It means it is the junction between the bulbar and palpebral. So here you will see, in between, here you will see conjunctival fornix. So these are the three structures of the conjunctiva. We have seen bulbar conjunctiva, palpebral conjunctiva, and third one is conjunctival fornix. Here in the diagram it will be more clear. Bulbar conjunctiva covering the sclera part. So this is sclera part. So this is the sclera part. The white portion is sclera part. Pardon me though, for previous slide I mentioned cornea over there, but this is white portion is your sclera. The sclera की जो covering है, sclera की covering पे bulbar आपका conjunctiva रहता है, and this is the whole bulbar conjunctiva, and this is the palpebral conjunctiva of the inferior eyelid reflecting onto the eyeball. Next we have the structure of the conjunctiva. So you have to just remember three names only: epithelium, adenoid layer, and fibrous layer, which is represented here in the histological diagram. That is the first layer, that is the epithelium, then it is the adenoid layer, and third one it is the fibrous layer of the conjunctiva. And next is a structure, it is termed as plica seminolaris. What is this plica seminolaris? So it is just a conjunctival fold. It is the crescentric fold of conjunctiva. It is situated in the medial canthus. Okay, medial canthus you all know. It is a pinkish crescentric fold of conjunctiva present in the medial canthus. So let's suppose this is the eye and this is the medial side. Okay, so in the medial side there is triangular shaped pinkish mass like structure which is known as plica seminolaris. Okay, so this is a pinkish triangular crescentric fold of conjunctiva and it is named as plica seminolaris. And adjacent to it, यानी कि medial ही, इसी के medial side पे एक हमारा structure है lacrimal caruncle. So what is the caruncle here? Next terminology is caruncle. It is also known as lacrimal caruncle. It is nothing but it is just a small ovoid shaped pinkish mass like structure here, and it is situated in the inner canthus. Okay, inner canthus. What is inner canthus? It is also a medial canthus. It is just a synonym of medial canthus. In the outer canthus we also see that is the lateral canthus. Okay, तो outer canthus को ही lateral canthus बोलते हैं and inner canthus को ही जो है वो medial canthus बोलते हैं. तो it is situated in the inner canthus just medial to the plica seminolaris. तो अगर यहाँ पे आपका plica seminolaris है तो उसके adjacent यानी कि medial side पे उस तरफ there is a lacrimal caruncle over here. So these are the two terminologies you have to remember. This plica seminolaris, it is a pinkish crescentric fold of conjunctiva present in the medial canthus, and what is caruncle? It is a small ovoid pinkish mass situated in the inner canthus just medial to the plica seminolaris.
Now, next we have to study the lacrimal glands and what is the lacrimal apparatus. Okay, so lacrimal gland का positioning कैसे है? This is the medial side. Here is nose. So it means it is the medial side of the body. There is nose, and this is the lacrimal apparatus. We will see in the upcoming slides. So this is the lacrimal gland. This hole is the lacrimal gland. In the lacrimal gland, we have the orbital part. First of all, we'll study the orbital part. So this is the orbital part of the lacrimal gland. So orbital part is larger. We have seen the image previously. It is about the size and the shape of a small almond. तो इसका जो शेप है और साइज है वो एक स्मॉल आलमंड के जैसे है, ठीक है, यू हैव सीन. एंड नेक्स्ट इट इज situated in the fossa for lacrimal gland at the outer part of the orbital plate of the frontal bone. So we have frontal bone, we have seen in the previous lecture. Where is the frontal bone? You have just to remember and see the previous lecture for the frontal bone. Situated in the fossa. There is a fossa. Fossa क्या होता है? Fossa एक गड्ढा होता है. तो एक गड्ढे के बीच में lacrimal gland जो है वो situated है. इतना वो यहाँ पर बोल रहे हैं at the outer plate, outer side पे जो है वो किसके आउटर साइड पे? ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन. इट हैज टू सरफेसेस. इसके दो सरफेस हैं, एक तो सुपीरियर सरफेस है और एक इंफीरियर सरफेस है. सुपीरियर सरफेस जो है वो इट इज कन्वेक्स इन शेप एंड इट लाइज इन द कांटेक्ट विद द बोन. तो सुपीरियर सरफेस क्या है? कन्वेक्स, और ये बोन के साथ जो है वो एडजेसेंट है, कांटेक्ट के साथ है. दूसरी साइड पे जो इसका इंफीरियर सरफेस है दैट इज कनकेव and it lies on the levator palpebral superioris muscle which is also known as LPS muscle. ठीक है, तो जो इसके दो surfaces हैं, this is the superior surface, it is convex in structure and inferior surface is somewhat concave in structure. जो superior surface है it is intimately in contact with the bone and the inferior surface is lies on the LPS muscle. So this is another diagram of lacrimal apparatus. So suppose this is your eye and this is your lacrimal gland and here it is the nose and these are some canaliculi which we will study later, and this is the lacrimal sac from where nasolacrimal duct continues and it opens into the inferior meatus of the nose. We will study here again in the next slides. So सबसे पहले मेन लैक्रिमल ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं. इसका पाल्पेब्रल पार्ट जो है वो स्मॉल होता है. ऑर्बिटल पार्ट वी हैव स्टडीड. नाउ देयर इज द पाल्पेब्रल पार्ट जो कि एलपीएस मसल के नीचे होता है. तो पाल्पेब्रल पार्ट वो स्मॉल होता है, उसमें 1 और 2 लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. देन कमिंग टू द डक्ट्स ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड. सो दीज यू हैव सीन इन द डायग्राम. दीज आर द डक्ट्स ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड. So these are 10 to 12 ducts pass open in the lateral part of the superior fornix. तो superior fornix के lateral part में ये 10 to 12 ducts जो है वो open up होती हैं. 1 or 2 ducts also open in the lateral part of inferior fornix. तो कुछ 1 से 2 ducts जो है वो inferior fornix पे भी open होते हैं. तो these are the ducts of the lacrimal gland from where lacrimal gland का function क्या है? टीयर का प्रोडक्शन, और जो टीयर का प्रोडक्शन होगा वो ऑर्बिटल पार्ट में एंड जो सिक्रीशन होगा वो इंफीरियर पार्ट में, और जो सिक्रीट हुए वहां पे लैक्रिमल ग्लैंड से वो डक्ट्स के थ्रू जो है वो हमारी आई में स्प्रेड आउट होगी. वो हम आगे प्रोसेस देखेंगे किस तरह होता है. नाउ कमिंग टू द एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स. तो वी हैव ग्लैंड्स ऑफ क्राउस, ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग. तो सबसे पहले ग्लैंड्स ऑफ क्राउस दैट लाई बीनेथ द पाल्पेब्रल कंजक्टिवा. तो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा वी हैव ऑलरेडी सीन. In the anterior side of the eyelid we have seen the palpebral conjunctiva. तो palpebral conjunctiva के नीचे और fornix और edge of the tarsus के in between जो है वो glands of Krauss रहता है. This is just for your understanding. You have just have to remember what is the gland's name only. तो glands of Krauss you have to remember and glands of Wolfram you have to remember. तो glands of Krauss this is 42 in the upper fornix and 6 to 8 in the lower fornix. अपर फॉर्निक्स पे इसका नंबर 42 है और जो लोअर फॉर्निक्स पे इसका नंबर 6 to 8 ओनली. कमिंग टू द ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिन. इट इज प्रेजेंट नियर द अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर टार्सल प्लेट
and along the lower border of inferior tarsal. So this is just the anatomical position of the glands. In this diagram, we have seen it earlier also. Now see, this is the basic structure of the lacrimal apparatus that is we are going to read. तो lacrimal apparatus pathway, it is just a pathway. apparatus क्यों, इसमें 5 से 6 स्ट्रक्चर्स आती हैं, तो एक पाथवे है हमारा टीयर्स का प्रोडक्शन से लेके उसका सिक्रीशन से लेके उसका एंडिंग सिक्रीशन कहां पर होता है, पूरा एक पैसेज क्या है उसके बारे में बात करेंगे. तो दिस apparatus starts with the tears produced by the lacrimal gland. तो लैक्रिमल ग्लैंड में क्या है, टीयर्स का प्रोडक्शन होता है एंड इट स्प्रेड अक्रॉस द आई. वो किससे होगा, थ्रू कंजक्टिवा और थ्रू द ब्लिंकिंग प्रोसेस. तो व्हेन द टीयर्स फॉर्मेशन अकर्स इन द ऑर्बिटल पार्ट एंड इट इज सिक्रेटेड थ्रू द palpebral part of the lacrimal gland, from the ducts the tears come into our eye and we blink, and that the tears film is spread uniformly in our eye. Then draining through the teeny openings. अब उसके बाद कहां जाएगा, हमने ब्लिंक किया, ब्लिंकिंग का प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो है वो टीयर यहाँ पे पंक्टा होता है, हमारे आंख में जो है वो पंक्टा सिचुएटेड है, हम आगे उसको स्टडी करेंगे डिटेल में. तो उस पंक्टा के थ्रू जो है वो आगे ड्रेनिंग जो है वो पास ऑन होगी एंड देन इन द आईलिड्स, आईलिड्स में पंक्टा सिचुएटेड होता है, फिर उसके बाद वो कैनेलिकुलाई में जाएगा. पंक्टा के बाद कहां जाएगा, कैनेलिकुलाई. तो देयर आर द कैनेलिकुलाई, एक ऊपर है एक नीचे है, इसके भी आगे 2 पार्ट्स हम स्टडी करेंगे. उसके बाद कलेक्टिंग इन द लैक्रिमल सैक. कैनेलिकुलाई में जाने के बाद हियर इज योर लैक्रिमल सैक. ओके, हियर इज योर लैक्रिमल सैक. लैक्रिमल सैक में जाने के बाद वो नीचे ट्रेवल करेंगे इनटू एनएलडी. व्हाट इज एनएलडी, इट इज नेज़ोलैक्रिमल डक्ट. ओके, collecting in the lacrimal sac and finally down the nasolacrimal duct to empty into the nasal cavity. और nasal cavity में जो है वो empty हो जाएगा. This system keeps the eye moist. ये जो पूरा प्रोसेस है इससे क्या फायदा हुआ, एक तो हमारी आई जो है वो कभी ड्राई नहीं होगी क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड्स का प्रोडक्शन और सिक्रीशन जो है वो रेगुलर होता रहता है. एंड थ्रू द ब्लिंकिंग, थ्रू द कंटिन्यूअस ब्लिंकिंग दैट वी ऑलरेडी डू इन अ नॉर्मल फिजियोलॉजी, उस ब्लिंकिंग से क्या होता है वो पूरा स्प्रेड होता है और हमारी आई जो है वो मॉइस्ट रहती है. तो यहाँ पे इट इज जस्टिफाइड, क्या लिखा है, दिस सिस्टम कीप्स द आई मॉइस्ट एंड क्लियर ऑफ द डेब्रिस. डेब्रिस क्या होता है, एनी वेस्ट मटेरियल इट इज कॉल्ड एज डेब्रिस. तो जब पूरा प्रोडक्शन होगा, आई फिल्म जो है वो पूरी टीयर की फिल्म स्प्रेड आउट हो जाएगी. तो हमारे आंख में कोई भी कचरा अगर आता है तो कैसे हम आंखें ब्लिंक करते हैं, वो क्यों करते हैं, ताकि टीयर्स का प्रोडक्शन और ज्यादा हो और वहां पे यूनिफॉर्मिटी स्प्रेड हो, टीयर फिल्म जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो ताकि जो भी आंख का कचरा है या डेब्रिस है वो निकल सके. तो इट इज द ऑटोमेटिक फंक्शन, ऑटोमेटिक इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू द एनी फॉरेन एंटीजन और फॉरेन बॉडीज ऑफ द एनवायरनमेंट. एंड with the blinking act as a pump for the drainage. We have already studied. यहाँ पे हमने देखा कि क्या सारा जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड का या लैक्रिमल ग्लैंड का क्या रोल है हमारे पास, उसके आगे आगे जो स्टेप्स हमने देखे. अब हम पढ़ेंगे लैक्रिमल पैसेजेस यानी कि लैक्रिमल एपरेटस को डिटेल में. तो लैक्रिमल एपरेटस में सबसे पहले हमने एक डिस्कस किया था लैक्रिमल पंक्टा, जिसको हम डिटेल में देखेंगे. तो व्हाट आर द लैक्रिमल पंक्टा, These are the two small openings, like एक छोटी सी ओपनिंग रहती है हमारी आईलिड में, अपर में भी और लोअर आईलिड में भी. तो छोटी सी ओपनिंग से जो है वो जब कंजक्टिवा में टीयर फिल्म स्प्रेड होती है तो पंक्टा में जाएगा. तो पंक्टा क्या है, छोटी सी ओपनिंग है which will carry our tears to the next structure. So these are the two small rounded or oval openings on upper and lower lids about 6 and 6.5 mm. तो यहाँ पे डायमेंशंस जो है वो पंक्टा की दे रखी हैं. स्लाइड एलिवेशन कॉल्ड द लैक्रिमल पेपिला. तो वहां पे पंक्टा के साथ में एक स्लाइड पेपिलेशन जो स्लाइड जो है वो एलिवेशन होती है विच इज कॉल्ड एज पेपिला फॉर्मेशन. तो लैक्रिमल पेपिला जो है उसे बोलते हैं. तो दिस इज द पंक्टा. कमिंग टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव लैक्रिमल कैनेलिकुलाई. ठीक है, इसको कैनेलिकुलाई इसलिए बोला है क्योंकि प्लूरल में है, ऊपर भी होती है नीचे भी होती है. Vertical canaliculi, then it will transform into the horizontal canaliculi. तो मतलब ये किसको ज्वाइन करता है, it joins the puncta to the lacrimal sac.
सबसे पहले हमने पंक्टा देखा, उसके बाद हमने लैक्रिमल सैक भी देखा है। तो उनके बीच में जो स्ट्रक्चर है, जो मीडियम है, टीयर्स लेके जाने का जो मीडियम है, वो क्या है? लैक्रिमल कैनालिकुलाई। तो इट जॉइन द पंक्टा टू द लैक्रिमल सैक। वी विल सी द डायग्राम। So let us suppose here is the puncta, right? So from here puncta, this is the lacrimal sac, and in between there are canaliculi, these canal-like structures. ठीक है, these canal-like structures are called canaliculi. तो यहाँ पे एक वर्टिकल कैनालिकुलाई है, देन एक हॉरिजॉन्टल कैनालिकुलाई है। यहाँ पे भी एक वर्टिकल कैनालिकुलाई है, एंड देन इट इज हॉरिजॉन्टल कैनालिकुलाई। Then coming to the next point, there are the two parts as I mentioned, vertical and horizontal. तो vertical की dimensions दे रखी है 1 to 2 mm and horizontal है 6 to 8 mm. These lie at the right angle to each other. तो जैसे vertical यहाँ है तो horizontal जो है वो यहाँ होगी. It will create 90 degree within each other. The horizontal part open in the sac. And ultimately जो है वो horizontal part of canaliculi it will open into the lacrimal sac. अभी हमारे पास क्या है? पंक्टा है। हमने सबसे पहले देखा पंक्टा। Puncta will connect with the vertical canaliculi, to be more precise, and vertical canaliculi will join the horizontal canaliculi, and then horizontal canaliculi will join the lacrimal sac. Next structure we had lacrimal sac. तो सैक का मतलब क्या होता है? सैक का मतलब होता है कोई बोरी जिसमें हम अनाज स्टोर करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सैक। तो यहाँ पे जो टीयर्स का स्टोरेज करता है, जो वो टीयर्स को अपने अंदर कलेक्ट करता है, तो वो है सैक। अब लैक्रिमल सैक है क्योंकि टीयर्स को स्टोर करता है, तो लाइज इन द लैक्रिमल फोसा। लैक्रिमल सैक कहां पे सिचुएटेड है? लैक्रिमल फोसा में सिचुएटेड है। फोसा एज वी हैव डिस्कस्ड इट इज लाइक अ गड्ढा। तो गड्ढा में जो है वो क्या है? लैक्रिमल सैक पड़ा हुआ है। द लैक्रिमल फोसा इज फॉर्म्ड बाय, अब वो गड्ढा किस चीज से बना है? लैक्रिमल बोन से बना है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से बना है। हमने देखा हमारी प्रोसेस जो है वो ये सारी मैक्सिला जो क्या है बोन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो मैक्सिला बोन का भी कौन सा प्रोसेस? फ्रंटल प्रोसेस। ठीक है, तो लैक्रिमल फोसा इज फॉर्म्ड बाय लैक्रिमल बोन एंड frontal process of maxilla. Dimensions are given of lacrimal sac 15 mm in length and 5 to 6 mm in breadth. अब lacrimal sac के जो है वो हमारे पास 3 parts है। कौन कौन से? फंडस, बॉडी एंड नेक। तो पोर्शन अबव द ओपनिंग ऑफ कैनालिकुलाई, कैनालिकुलाई जहां पे ओपन होता है उसके पोर्शन से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन होगा वो है उसका फंडस पार्ट। हम सैक की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बॉडी जो है वो उसका मिडल पार्ट है, एंड देन नेक इज द लोअर स्मॉल पार्ट व्हिच इज नैरो एंड कंटिन्यूज विद द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। अब अगली स्ट्रक्चर हमको पता है, अगली स्ट्रक्चर क्या है? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। तो अभी नेक पोर्शन जो है वो लोअर वाला पार्ट है जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है एंड व्हिच इज आल्सो नैरो एंड इट कंटिन्यूज विद द एनएलडी यानी कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट फ्रॉम द नेक ऑफ द लैक्रिमल सैक टू द इंफीरियर मीटस ऑफ द नोज। अब एनएलडी का जो एनाटॉमिकल लेंथ है, एनाटॉमिकल पोजीशन है, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि लैक्रिमल सैक से निकलती है, बट कौन सा पोर्शन? नेक ऑफ द लैक्रिमल सैक। तो नेक ऑफ द लैक्रिमल सैक टू इंफीरियर मीटस ऑफ द नोज। तो नोज का जो इंफीरियर मीटस है वहां तक जो है वो ट्रेवल करती है, विच इज एनएलडी। यहाँ पे डायमेंशंस दे रखी है 15 टू 18 mm जो है वो इसका लेंथ है। डायरेक्शन ऑफ एनएलडी, एनएलडी कैसे है? डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लेटरली। तो दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन, यू मस्ट नो। डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लेटरली मूव करती है। द अपर एंड ऑफ द एनएलडी इज द नैरोएस्ट पार्ट। तो मतलब कि जो नेक से निकलती है तब वहां पे क्या होती है? नैरोएस्ट होती है। द अपर एंड ऑफ द एनएलडी इज द नैरोएस्ट पार्ट। न्यूमरस मेम्ब्रेनस वॉल्स इन द एनएलडी। तो अब एनएलडी में जो है वो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इज द वॉल्व ऑफ हेजनर, वेरी इंपोर्टेंट, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। वॉल्व ऑफ हेजनर इज सिचुएटेड इन, तो ऑप्शंस आते हैं। तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का जो है ये पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, which is present at the lower end of the duct.
तो एनएलडी के लोअर एंड में जहां वो इंफीरियर मीटर्स ऑफ द नोज में वो खुलता है, तो वहां खुलने से पहले इट्स अ वॉल्व ऑफ हेस्नर इज देयर। व्हाट इट डज, इट प्रिवेंट्स द रिफ्लक्स फ्रॉम द नोज। तो नोज में से कोई भी रिफ्लेक्स को वो जो है वो प्रिवेंट करता है। अब आप कनेक्ट कर सकते हो कि जब आप रोते हो, है ना, तो उसके साथ हमारा कनेक्शन किसके साथ रहता है, हमारी नोज के साथ कनेक्शन रहता है। तो जब आप रोते हो तो कैसे नाक में पानी आने लग जाता है, तो उसका रीजन अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि लैक्रिमल ग्लैंड से जो है वो टीयर्स का प्रोडक्शन होता है, वहां से सिक्रीशन होता है, फिर डक्ट्स आती हैं 10 to 12 डक्ट्स जो हमने देखी थी। अब वो 10 to 12 डक्ट्स उसके बाद वो कहाँ आता है, कंजक्टाइवल सैक में आता है। तो कंजक्टाइवल सैक में हम ब्लिंकिंग प्रोसेस करते हैं तो वो स्प्रेड होता है टीयर फिल्म पूरा यूनिफॉर्मली एंड देन इट विल रीच द पंक्टा। पंक्टा से कहाँ जाएगा, वर्टिकल कैनालिकुलाई, देन अगेन हॉरिजॉन्टल कैनालिकुलाई एंड देन टू द लैक्रिमल सैक एंड देन डाउनवर्ड्स इनटू एनएलडी एंड एनएलडी ओपन्स इनटू द इंफीरियर मीटर्स ऑफ द नोज। तो जब हम रोते हैं तो तभी इसीलिए हमारे नाक में भी जो है वो पानी आता है। तो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट का लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट आई बॉल, इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अभी तक आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने अभी तक क्या देखा है। ऑर्बिटल कैविटी वी हैव क्लियर्ड एंड उसके बाद हमने एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई जो है वो हमने अच्छे से देखा। उसके बाद एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स करते हुए हमने कंजक्टाइवा और आईलिड्स इनके बारे में थोड़ा सा देखा एंड देन वी हैव सीन द लैक्रिमल ग्लैंड एंड लैक्रिमल apparatus। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से जो है वो स्टार्ट करेंगे आई बॉल से। थैंक यू।